Good morning to all of you. My name is Adiba Musarrat. I am from Little Flower Children's School, Sikatia branch. Today I have made a model on surface area and volume under the guidance of Miss Sabah Nasreen. I am very thankful to Principal Sir and Vice Principal Ma'am of Sikatia branch for giving a beautiful opportunity to express something new. I have made this model. Let's start and explain. Here I have made 5 figures: cube, cuboid, cylinder, cone and sphere. Here is the explanation of cube, how it's formed and area of diagonal of cube and its total surface area, lateral surface area and about without its lid. If we are talking about its formation, then it is formed by 6 cube sheet. Square sheet we can say, and if means the area of one wall is equal to a square, and if and in the cube there is a 6 wall, so we can say that it's 6a square, and lateral means about 4 wall, so there is a means 4 wall and there is a area of one wall is a square, so we can say that lateral surface area of cube is 4a square. And if we are talking about its lid, so what we understand by a lid means if there is a room without its ceiling, that is known as the area of cube without its lid. So there is only 5 wall will be involved. So we can say that the surface area of cube without its lids is 5a square. And if we are talking about 5 diagonal of cube, so there will be the diagonal the largest diagonal from its means here we can say that if this is diagonal, then from this point to this point, this will be the largest diagonal. If we are if any way if we will find this, then we can find this. So firstly we will find this. Here is the explanation. Here is a cube, and firstly we know that CG is a length. CG is a breadth, HG is a length, and if find CA, then it will be diagonal, and here is also a length. Height. If we find BH through any rule, then we can find its diagonal. So we find its through Pythagoras theorem, which we know that. And here is the question which I have solved related to cube. And more, if we are talking about cuboid, here is the explanation of cuboid. एक्चुअली जो क्यूबॉइड होता है वो 6 रेक्टेंगुलर शीट से मिल के बनता है. इसमें फेसेस भी होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं, एजेस भी होते हैं. लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो हम इसका अगर कोई जैसे एग्जाम्स में भूल जाते हैं तो इसका ये कर सकते हैं, लेटरल में से जो हमारी लेंथ ब्रेथ और एल होती हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका टोटल में से मैंने माइनस कर दिया है तो इसके लेटरल आ गए हैं. और ये टोटल सरफेस एरिया जैसे एक रूम का एग्जांपल ले तो उसमें लेंथ हाइट तो दोनों मतलब 2 टाइम्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लेके कर दी हैं. ये विदाउट इट्स लीड है, मीन्स एक एरिया को मैंने माइनस कर दिया है. और यहाँ पे टोटल है सेम एज दैट. और यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है, जैसे हमने क्यूब में देखा था कि हम यहाँ पे ब्रेथ हमें पता थी, लेंथ पता थी, और यहाँ पे अगर किसी तरह CH की वैल्यू निकल जाए तो हम BH की निकाल देते हैं. तो उसको मैंने पाइथागोरस थ्योरम से मैंने सॉल्व किए हैं. फर्दर मोर अगर हम आए सिलेंडर पे, एक्चुअली जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, पहले तो इसके फॉर्मेशन पर देखें तो ये जो होता है एक रेक्टेंगुलर से बनता है. तो हम कह सकते हैं अगर ये रेक्टेंगुलर शीट से बना है तो हम जानते हैं कि जो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B होता है. तो लेंथ यहाँ पे जो होती है हाइट के जैसे काम करती है, और जो ब्रेथ होता है जैसे कि सर्कल होता है तो हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. B की हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी, और जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है, और इनटू कर दिया तो हमारे कर्व आ गया. फर्दर मोर टोटल की बात करें तो उसमें क्या होगा कि ऊपर एक सर्कल होगा और नीचे भी होगा, और उसका मैंने जो कर्व था उसमें मैंने ऐड कर दिए दोनों के एरिया और सर्कल के, देन हमारे टोटल आ गए. और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो सिलेंडर से रिलेटेड थे. फर्दर मोर अगर हम कोन पे आएँ तो इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं. जैसे ये कोन है,
जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें 90 डिग्री बनते हैं, तो जब हम उसको उसके एल्टीट्यूड से मीन्स जो हाइट होती है उसके अलॉन्ग अगर हम जो रोटेट करेंगे कुछ इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वो जो इमेज होती है वो एक्चुअली कोन होती है। जैसे और अगर इस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे जो कोन होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये जो हाइट होती है ये स्लैंट हाइट होती है, और जो यहाँ पे जो इसके अंदर होगी वो ओरिजिनल हाइट होती है। इसके टोटल सरफेस एरिया पे देखें तो कर्व्ड सरफेस हमें पता है पाई आर एल होता है, और एरिया ऑफ बेस जो होता है जैसे कि ये होता है तो मीन्स सर्कल के शेप में होता है, तो मैंने यहाँ पे कर्व्ड लिख दिए। एंड देन एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस हो गया। कर्व्ड की बात करें तो मैंने अभी कहा था कि इसका जो फॉर्मेशन होता है राइट ट्रायंगल से होता है, तो हम जानते हैं कि एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और बेस मैंने बेस सर्कल था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जो हाइट थी ओरिजिनल वो हाइट हुई, और ये 2 से 2 कट गया, पाई आर एल हो गया। और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, अगर हम एक कोन और एक सिलेंडर को दोनों अगर सेम हाइट के हैं और उनका रेडियस सेम है, तो अगर हम इस सपोज दैट इसमें वाटर है, अगर हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये पूरा कोन फिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने अभी डिस्कस किया है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और देन मैंने सॉल्व कर दिया, ये आ गया। ये उस कोन के बेस पे एक क्वेश्चन है। फर्दर मोर स्फीयर को हम अगर डिस्कस करें तो एक्चुअली अगर हम इसके फॉर्मेशन पे देखें तो जब अगर हम एक सर्कल लेंगे और उसका जो डायमीटर के अलॉन्ग उसको रोटेट करेंगे तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन होगा। अब इस स्फीयर में जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होते हैं। सो दैट्स वाई जो मैथमेटिशियन थे वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहती हैं। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई बेस नहीं होते हैं। अब इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो जो स्फीयर होता है, अगर हम 4 सर्कल को जब हम मीन्स ज्वाइन कर देंगे तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और हम इसका 4 सर्कल से फॉर्मेशन होता है, तो हम अगर इस चारों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल और 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसके सरफेस मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है। फर्दर मोर अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो अगर हम दो कोन लें जिसका हाइट सेम हो और रेडियस भी सेम हो, और एक स्फीयर लें जिसकी हाइट सेम हो, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रेडियस इसका और ये एक रेडियस, अगर हम स्फीयर में जब देखेंगे ये दोनों रेडियस जब मिल जा रहे हैं तो एक हाइट बन जा रही है जो कि ये कोन के हाइट के इक्वल है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, दोनों की वैल्यू रख दिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा। और मैंने यहाँ पे बताया कि इस आर को और इस आर को जब ऐड करेंगे तो एक हाइट का वर्क कर रहा है, तो सो मैंने ये लिख दिया आर प्लस आर इक्वल टू हाइट। अब मैंने आर की जगह ये वैल्यू रखी, यहाँ पे 2r हो गया, देन मैंने सॉल्व कर दिया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। थैंक यू।